A very warm welcome to Ambedkar Jayanti celebration. We are excited to have you here. डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। A very joyful good morning to all of you. I'd like to welcome our honorable principal sir, Dr. Sudhir Adi sir, our esteemed faculty members, respected seniors, also my beloved batchmates and our lovely juniors. Today, we have gathered here to celebrate the 134th birth anniversary of our Mahapurush, the director of Indian Constitution, Bharat Ratna Dr. Baba Sahab Bhimrao Ambedkar. Now, we would like to present some mementos to our respected principals. CMS Dr. Hussain Khan sir. Dr. Vijay Jaiswal, Head of Department Pediatrics. Dr. Vijay Kumar sir, Head of Department Pathology. Dr. Manoj sir, Head of Department Medicine. Dr. Anil Kumar sir, Head of Department Microbiology. Dr. Kapil sir, Head of Department Pediatrics. Sorry sir. Head of Department AMD. लेकिन डॉक्टर का पहले एंटी वाला में टेरर नहीं पीडियाट्रिक का टेरर मैंने कहा पीडियाट्रिक का टेरर ज्यादा है Dr. Vinod Chaurasia, Surgery. हमारे यूजी में एंटी के नाम पे किसी ने सीखा था बना ला Pramod Yadav from Pediatrics. Dr. Archana from Derma. Dr. Chekam. Dr. Jasprit Kaur Mehru. Dr. Pooja Mehru. Dr. Priyanka ma'am. Dr. Swati ma'am. And Dr. Rashmi ma'am. And last of all, our respected Para ma'am.
the Indian Constitution. His call to educate, agitate, and organize was not just a slogan, but a movement that continues to inspire even millions today. So let's pledge to uphold the principle of liberty, equality, fraternity, justice that he passionately fought for. From dusty trails to halls of love, born in chain, yet mind set free, he dreamed of tranquility with book as his weapon, truth as his guide. He stood for those pushed aside. He was a visionary leader, a powerful advocate for justice, and a source of inspiration for generations to come. He continues to be revered as a symbol of hope and change in India and beyond. Now, to begin the program, let's ask Ma Saraswati, the divine embodiment of wisdom and knowledge, to shower us upon with her blessings. I would now like to invite our new faces to grace the air with their beloved performance.
त्यागमूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी दया प्रेम मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी सिद्ध मूर्ती सिद्धार्थ गौतम सगळ्यांचा स्वामी मन शुद्ध है तन बुद्ध है तन शुद्ध है मन बुद्ध है देश बचाने देश बुद्धि शुद्ध है मन शुद्ध है तन बुद्ध है तन शुद्ध है मन बुद्ध है बुद्ध है तन शुद्ध है वो शुद्ध है तन शुद्ध है जिसको ये पता था कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूं और मेरी बेइज्जती होगी, मुझे अपमानित किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी पेशेंस को बनाए रखने के बाद सारे काम उन्होंने किए। इसके लिए बहुत ऊंचे लेवल की पेशेंस चाहिए और बिना किसी को अपमानित किए हुए, बिना किसी का खून बहाए हुए, न केवल अपने लिए बल्कि देश के उन पता नहीं कितने नागरिकों के लिए जो कि इसी देश के नागरिक थे, इसी देश के नागरिक होने के बावजूद भी अधिकारों से वंचित, सम्मान से वंचित उन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया जो कि अहिंसात्मक संघर्ष था। थैंक यू सो मच सर। न चोर हार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृराज्यम न च भारत व्यम कृते वर्तते व नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधान। विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम विचारों की बाढ़ ला दो, प्रकृति उसे खुद संभाल लेगी। इसी को साकार करते हुए अम्बेडकर जी ने अपनी करुणा, विचारों और संकल्प से भारत की और मानवता को एक नई शुरुआत दी। बाबा साहेब द्वारा किए गए अनेक अविश्वसनीय परंतु सत्य बदलाव में से कुछ को नाट्य प्रस्तुति के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। Cultivation of mindset is the ultimate aim of human existence. That's what Baba Sahib said. In the context of saying, let us call upon the stage champs number 24 batch to recall the contributions of Baba Sahib Ambedkar and cast light upon the same as they present a wonderful skit performance. सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, समस्त शिक्षकगण एवं वरिष्ठगण को मेरा नमस्कार। आपको 134वीं अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम हिमांशु गोडवाल है। मैं जनता 2024 का छात्र हूँ। आज हम आपके सामने एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके शीर्षक है विद्यालय में शिक्षा के लिए संघर्ष। विद्यालय में शिक्षा के लिए संघर्ष। दृश्य 1। कक्षा में रामू कक्षा में नीचे बैठता है जबकि उच्च वर्ग के छात्र ऊपर बैठते हैं। मुझे हमेशा नीचे ही बैठना पड़ता है। मैं भी तो बाकी छात्रों की तरह हूँ। रामू क्या हुआ? गुरुजी, मुझे सबसे अलग क्यों बैठना पड़ता है? मैं भी तो बाकी छात्रों की तरह ही हूँ। रामू भी सही, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन पुरानी परंपराओं में विश्वास करते हैं। दृश्य 2।
दूर गांव में एक लड़की का संघर्ष। सावित्री एक टूटी किताब के लिए भीम के पास आती है। भीम भैया, मैंने ये किताब पाई, पर बाबूजी कहते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ती। शादी करो, चूल्हा संभालो। नहीं सावित्री, शिक्षा लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं करती। तुम पढ़ोगी और मैं सिखाऊंगा। पर गांव वाले क्या कहेंगे? तुमको बदलना होगा, हम सबको पढ़ने का अधिकार है। दृश्य 3 संघर्ष। रामू कक्षा में भाग लेने की कोशिश करता है, लेकिन उच्च वर्ग के छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। यह सत्य नहीं है, हमें भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। बस करो, हमें आप भेदभाव नहीं करते। हर किसी को सीखने का समान अवसर मिलना चाहिए। दृश्य 4 परिवर्तन। रामू अपने अधिकारों के लिए बोलने का फैसला करता है। मैं सीखना चाहता हूँ जैसे बाकी सब। मुझे भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। रामू, तुम एक मेधावी छात्र हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कक्षा में ऊपर बैठो और पूर्ण रूप से भाग लो। धन्यवाद गुरु जी, आपकी ये बातें मेरे लिए बहुत महत्व रखती हैं। समापन दृश्य। रामू अपने नए दोस्तों के साथ कक्षा में ऊपर बैठता है। यह शीर्षक महार सत्याग्रह के मुख्य उद्देश्य और घटना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो चपदार तालाब पर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था। महार सत्याग्रह समय 20 मार्च 1927, स्थान महार, महाराष्ट्र। दृश्य 1 चपदार तालाब के पास सभा। भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए ताकि अपने हक के लिए लड़ सके। ये चपदार तालाब सबके लिए है, फिर हमें यहाँ आने से क्यों रोका जाता है? क्या हम इंसान नहीं? पानी पीना हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाबा साहब, मैं आपके साथ, हम आपके साथ हैं। सालों से हमें इस तालाब से पानी लेने से रोका गया। मेरे बच्चे प्यासे रहते हैं, लेकिन आज हम डरेंगे नहीं। हाँ बाबा साहब, हम युवा भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, सम्मान की है। हमें ये बेड़ियां तोड़ दी है। अरे ये क्या कमाल रहा है? ये तालाब हमारा है और तुम्हें हमारे संसाधनों को छूने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं आने? प्रधान जी, अपने नीच विचार छोड़िए और इंसानियत की बात कीजिए। पानी तो प्रकृति की देन है, इसे कोई अपनी जागीर नहीं बना सकता। और हमारा कानून भी कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर सबका अधिकार है। हमारा सत्याग्रह हिंसा नहीं, सच्चाई की ताकत है। दृश्य 2 तर्क वितर्क। सुरेंद्र, जो नगर पालिका का एक समर्थक है, बीच में आता है। प्रधान जी, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन बाबा साहेब सही कह रहे हैं। 1923 की बॉम्बे विधान परिषद में भी यह नियम पास किया कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों का हक है, और हमारी नगर पालिका ने भी इसे मंजूर किया। फिर ये विरोध क्यों? सुरेंद्र, तुम हमें धोखा दे रहे हो। ये परंपरा का अपमान है। अगर ये लोग इस तालाब से पानी पीएंगे तो पानी अशुद्ध हो जाएगा। यह पानी अशुद्ध होगा, क्या आपका अहंकार टूटे? प्रधान जी, हम भी इंसान हैं। कब तक हम जातिवाद की वजह से प्यासे मरते रहेंगे? परंपरा जीवन सुधारने के लिए होती है, ना कि वर्ग भेद में काटकर लोगों को मरने देने के लिए। सुरेंद्र भाई, आपने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें कदम उठाना पड़ेगा। दृश्य 3 सत्याग्रह की शुरुआत। अम्बेडकर जी तालाब की ओर बढ़ते हैं। सभी कार्यकर्ता उनके पीछे चलते हैं। आज हम इस तालाब से पानी पिएंगे। ये कोई अपराध तो नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान की जीत है। जो मेरे साथ है, आगे आए। बाबा साहब, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। हाँ बाबा साहब, ये पानी से प्यास नहीं बुझाता, बल्कि हमें सम्मान दिलाता है। ये पाप है, तुम सब इसका परिणाम भुगतोगे। प्रधान जी, ये पाप नहीं, न्याय है। समय बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। दृश्य 4 समापन। अम्बेडकर जी फिर से भीड़ को संबोधित करते हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन हमारा संघर्ष तो भी बहुत लंबा है। लेकिन आज हमने दिखा दिया कि सत्य और हिम्मत के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाइयों, अपने हक के लिए लड़ो। इस सत्याग्रह हमारी जीत का पहला कदम है। हम अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीकर इस तालाब का, लेकिन हमारे ये कदम स्पष्ट करते हैं कि हम भी इंसान हैं।
विधवा पुनर्विवाह। बाबा साहब अम्बेडकर ने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देते हुए महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दे पर जोर दिया। शीर्षक विधवा पुनर्विवाह। समय 1940 का दशक। स्थान एक गांव में सभा। दृश्य 1। सभा की शुरुआत। मंच पर सभा चल रही है। अंबेडकर जी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कमला उदास चेहरे के साथ एक कोने में खड़ी है। भाइयों और बहनों, हमारा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अपनी बहनों को बेड़े में जकड़े रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह केवल उनकी आजादी का नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे ले जाने का एक रास्ता है। और यह कोई परंपरा तो नहीं बल्कि अत्याचार है जो उन्हें जीवन भर दुख में जीने के लिए मजबूर करता है। राधा, बाबा साहेब सही कहते हैं। मेरा पति चला गया तो क्या मेरा जीवन ही खत्म हो गया? अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और ये लोग मुझे मृत समझने लगे हैं। कमला, डर मत, बाबा साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यह क्या बकवास है अम्बेडकर जी? विधवा पुनर्विवाह हमारे समाज के खिलाफ है। यह हमारी परंपराओं का अपमान है। ऐसी सोच रखने वाली महिलाएं समाज को कलंकित करती है। विश्वनाथ जी, सामाजिकता को ढाल मत बनाइए। ये नियम तो इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही इन्हें बदल सकते हैं। मैं तो केवल हिंदू वोट बिल के जरिए विधवाओं को उनका अधिकार दिलाना चाहता हूँ। दृश्य 2। कमला की दुविधा। कमला और विजय बात कर रहे हैं। विजय कमला से शादी करना चाहता है। कमला, मुझे पता है मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैं तुझे पसंद करता हूँ। अगर तू तैयार हो तो मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बाबा साहेब कहते हैं इसमें कोई गलत नहीं है। विजय, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं भी नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे और विश्वनाथ जी मुझे घर से निकाल देंगे। कमला, लोगों की परवाह मत कर। बाबा साहब ने कहा है हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। विजय एक अच्छा इंसान है और तू भी खुश रहने की हकदार है। अरे यह क्या साजिश है? विजय, तू एक विधवा से शादी करेगा? यह तेरा परिवार बदनाम हो जाएगा। विश्वनाथ जी, आप तो ये है कि हम एक जिंदा औरत को जिंदा लाश बनाकर रखें। बाबा साहेब की बातों ने मेरी आंखें खोल दी है और मैं कमला से शादी करना चाहता हूँ। दृश्य 3। सभा में टकराव। अंबेडकर जी फिर से बोलते हैं। विश्वनाथ विरोध करते हैं। मैंने सामाजिक परंपराओं वोट बिल का सपना देखा है जिसमें विधवाओं को पूरे अधिकार मिले, संपत्ति का, सम्मान का और दोबारा शादी करने का। और यह सिर्फ कानून की बात नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदलने की लड़ाई है। कमला जैसी बहनें हमारी ताकत है, इन्हें कमजोर मत समझिए। तुम सामाजिक परंपराओं को नष्ट कर दोगे अम्बेडकर। ये सब पश्चिमी विचार है, हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वनाथ जी, ये हिचकिचाहट छोड़ने का वक्त है। ये हिचकिचाहट छोड़ने का वक्त है। कमला को उसका हक मिलना चाहिए। दृश्य 4। समापन। कमला और विजय दोनों साथ में मंच पर आते हैं। बाबा साहेब, आज आपकी वजह से मैं जी पा रही हूँ। मैं और विजय शादी करने जा रहे हैं। धन्यवाद बाबा साहेब, आपने हमें हिम्मत दी है, हम आपके आभारी हैं। यह मेरी जीत नहीं, तुम सबकी जीत है। जब तक हर औरत और हर इंसान को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, मैं लड़ता रहूंगा। जाओ और नए जीवन शुरू करो। अम्बेडकर ने महान सत्याग्रह के माध्यम से वंचित वर्गों के जन अधिकारों के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं के पुनर्विवाह के अधिकारों को समर्थन देकर सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने वंचित वर्गों के लिए अवसरों की वकालत की। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में समानता और न्याय की नींव रखी। अम्बेडकर जी का योगदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। Baba Saheb's words were, I measure the progress of a community at the degree of progress women have achieved. It was
was wonderfully portrayed by Arjun. Right, Ashish? Absolutely, Pragya. Let's make ensure that progress reaches every corner, every individual, and every heart. Now I would like to call Dr. Pramod Yadav sir to embrace us with his quotes. Sir, Respected principal sir, all the faculty members, and dear students. Today is 134th birth anniversary of our beloved Baba Saheb Ambedkar ji, and I wish to congratulate you all on this birth anniversary. I wish that we all follow his thoughts and his vision in making our country a beautiful, vibrant country where all people work together. मेरी यही आप सबको बधाई देने के बाद इच्छा है कि हम सब बाबा साहब के दिए हुए सामाजिक समानता समरसता के सिद्धांतों को पालन करेंगे। धन्यवाद। Good morning, respected principal sir, respected faculties, respected seniors, and my fellow mates and dear juniors. As we all know that we have gathered to celebrate a prestigious and historical day to honor the architect of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, a beacon of hope and a tireless champion of justice and equality. Let us proceed with the further program. चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं 2024 जनता की छात्रा पुण्य चुप को, जो अपने विचारों से इस माहौल को ऊर्जा से भर देंगे। जोरदार तालियों से उनका आंसू बढ़ाएंगे। दर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास बनाने वाले हमारे भीम थे। नमस्कार, मेरा नाम पुण्य चुग है। मैं जत्था 2024 की छात्रा आप सभी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ। आज 14 अप्रैल है। आज से 134 वर्ष पूर्व 1891 में सूरज ऐसे ही खिला होगा जैसे आज खिला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है। पर वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता की सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थ में वक्त का साचा बदल दिया। समाज की व्यवस्था में एक ऐसा विष घुला था कि बाबा साहेब छोटे वर्ग के माने जाते थे। विद्यालय में उन्हें कक्षा में बैठने तक की अनुमति न थी। वहां पड़े पानी के मटके तक को छूने की मनाही थी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यह बालक 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 डिग्रियां हासिल की, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वह पहले भारतीय बने और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माता बने। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, बड़ी रहन दो म्यान। कहाँ वो विद्यालय, वो कक्षा से बाहर बैठना, वो पानी का मटका न छूना, वो गरीबी, वो असमर्थता, और कहाँ ख्याति और सम्मान का शिखर। अरे पर्वत जिसकी लाचारी पे तू हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखी लेकर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जात पात का भेदभाव बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। एक महिला होने के नाते बाबा साहेब के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के शिक्षा अधिकार, गरिमा एवं लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व ढंग से आवाज उठाई और उसको हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। बाबा साहेब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब सच है पर झूठी लगती है, क्योंकि यह मानना कठिन है कि कोई व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाओं को इस प्रकार बदल सकता है। क्या था
बना दिया। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहेब के योगदान को किसी एक विषय या वर्ग से जोड़कर देखना उनके योगदान को सीमित करना है। बाबा साहेब जैसे व्यक्तित्व उन सबके हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें मानवीय करुणा और तार्किकता पर भरोसा है, जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं। बाबा साहेब our principal sir, Dr. Sudhir Rathi sir, to share his wisdom with us. CMS डॉक्टर प्रदीप, सभी विभाग उपस्थित विभागाध्यक्ष, सभी चिकित्सा शिक्षागण, स्टाफ मेंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, 2023 बैच और 2023 बाद को विशेष बधाइयां जिन्होंने ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज करा। साथ साथ 2022 बैच के भी 13 लोग मीरपुर गांव में कैंप पर गए हैं। आज हम लोगों ने एक कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है रविदास मंदिर के पास मीरपुर गांव में, तो उसमें आपका जो सीनियर बैच है वो लोग वहां पर कैंप में गए। एक बार मैं आप सभी को 134वें जन्म दिवस की बाबा साहब की बधाइयां देता हूं। बहुत ही शुभ दिन है ये, हम याद करते हैं। और वो दिन क्या रहा होगा 1891 में, जिस दिन इस महान विभूति ने जन्म लिया था। कुछ सितारे, नक्षत्र, देवी देवताओं की कृपा रही होगी, जहाँ पे जिस समाज में जन्म लिया और किस शिखर तक पहुंचे, क्या ताकत रही होगी उनमें। उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है हमारे देश के लिए। बाबा साहब को सम्मान मिला तो हम सब सोच सकते हैं। और जैसा अभी बच्चों ने मंचा सीन किया, सारी पुरानी चीजें दिखाई, किस किस चीजों से वो निकल कर गए, तो आप सोचिए कि कितना उन्होंने संघर्ष किया और फिर कहां तक पहुंचे। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो हमारे जो सर्वोच्च शिखर पुरुष हैं हमारे देश के, उनमें से एक थे। और ये कहना चाहिए कि द बेस्ट थे। मतलब बहुत जो मेन काम, और जो हमें जो अभी बच्चों ने मंचा सीन किया, आप लोगों ने क्या क्या बुराइयां दी, वो संविधान जो हमें इक्वलिटी की ताकत देता है उन्हीं का बनाया हुआ था। और आप देखो कि आजादी के 75 साल बाद हम लोगों को इक्वलिटी प्राप्त हो गई है। इस तरह की चीजें अब बहुत ही कम देखने में मिलती है, इक्की दुक्की देखने में मिलती है, या कई बार तो लोकल किसी वजह से प्रॉब्लम या प्रायोजित टाइप की होती है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है, मीडिया प्रोपेगेंडा किया गया, रियल नहीं होती है। दूसरी चीज मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बुराई हमारी कल्चर में रही। गुलाम रहे हम 500 साल, अंग्रेजी उसमें से अंग्रेजी 200 साल रहे, और उनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर बहुत रिच है। हमारे कल्चर में अब आप रामचरितमानस पढ़ो, जगह जगह की रामचरितमानस पढ़ो। खाली तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, कवि कम्बन ने साउथ में लिखी थी, आसाम के कवि हैं, संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। तो आप सारी वाल्मीकि पढ़ो, सारी रामायण पढ़ो, उसमें आपको क्या मिलेगा? हम लोग सब एक रिच कल्चर के हैं। वो बीच में क्योंकि थोड़ा सा गुलामी वाला पीरियड आ गया, उसमें हम लोगों की मानसिकता हो गई और ये बुराइयां घर कर गई। अब धीरे धीरे जो अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था और जो संविधान की ताकत दी थी, उससे ये सब चीजें हमने एक बार फिर से खत्म कर दी। अगर खत्म नहीं करनी है तो 90% तो कंट्रोल पा लिया है। और आने वाले जो अगर कोई 500 साल की बीमारी है तो उसे जाने में करीब 100 साल लगेंगे भी। तो हमने, मेरे हिसाब से तो हमने 90% कंट्रोल पा लिया है। अगर छुट थोड़ी बहुत 5-10% घटनाएं होती भी हैं, धीरे धीरे वो भी ग्रेजुअली निकल जाएंगी, वैनिश अवे हो जाएंगी, वो नहीं बचेंगी हमारे समाज में। थैंक यू वेरी मच। Forward, we welcome back 2024 with a performance filled with the drama, passion and the raw emotions and present an amazing musical act. जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
कुछ साल बाद मुझसे बहस करती है, मुझसे बहस करती है। ये खाना बनाया तुमने, नमक का है इसमें, है? नमक का है इसमें। अरे क्या हुआ? कैसे खाने बना कर दिया? जब से घर में आई है जिंदगी बर्बाद करके रखी है मेरे बेटे। अब खाने क्या है? जा जा काम कर। बार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है, बन के घाव पे मरहम हया का मन का घाव है, प्यासा दवा का घुट घुट के कब तक जियोगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी। But also spiritually uplifting. It was a powerful and evocative portrait of life and teachings of enlightened world. Before we move forward, we would like to welcome Dr. Ahuja sir. Brings enthusiasm to life with an intensity that is both rhyme and verse. अंधियारों से लड़ते हैं, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसे झड़ने की जिनकी तैयारी है, फूलों जैसे झड़ने की जिनकी तैयारी है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं प्रबुद्ध श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंशिका सिंह आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें एक कविता के माध्यम से कोटि कोटि नमन करती हूँ। कलम है शस्त्र, कलम है शस्त्र, वस्त्र संविधान है, भारत का तिरंगा महामानव की शान है, संघर्ष में जीवन कहलाता भीमराव है, भीमा का लाल तो देश का अभिमान है। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया, देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया, पीढ़ियों को तोड़कर स्वाभिमान दिलाया। बेजुबा की जुबान शोषित की आवाज है, बाबा साहब पर हम सभी को नाज है। कलम है शस्त्र, वस्त्र संविधान है, भारत का तिरंगा महामानव की शान है। छुआछूत ऊंच नीच बेड़ियां जो तोड़ी, छुआछूत ऊंच नीच बेड़ियां जो तोड़ी, मनुस्मृति की रीढ़ की हड्डियां मरोड़ी। जीवन संघर्ष है, नाम ही आदर्श है, बोलो जय भीम तो घोटों को भी हर्ष है। कलम है शस्त्र, वस्त्र संविधान है, देश का तिरंगा महामानव की शान है, महामानव की शान है। जय भीम, जय भारत।
What a performance by Arshika Sen. It touched all of us in a way that other poems haven't. But the show is incomplete without electrifying singing performance. So please welcome students of 24 batch with a huge round of applause. समस्त अध्यापकगण, वरिष्ठगण और मेरे सहपाठियों को बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं चंद्र प्रताप सिंह आपको बाबा साहब के प्रारंभिक जीवन से जुड़े मूल्यों पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित मऊ गांव में
रामजी मलोरी सरपाल और भीमाबाई के परिवार ने चौथी संस्थान के रूप में एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कबीर पत्नी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। पिता रामजी सरपाल सन 1894 में सूबेदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके तहत 2 वर्ष पश्चात इनका परिवार सतारा में प्रवासित हो गया। इनकी माता के निधन के उपरांत इनका पालन पोषण इनकी बुआ द्वारा किया गया था। जब वह लगभग 15 वर्ष के थे तब इनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया था। परिवार के समर्थन और इनके अध्ययन तक रहने की रुचि ने इनके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जो उस समय की सामाजिक कल्पना के परे था। बिल गेट्स का कहना था कि अगर आपके जीवन का प्रारंभ बुरा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन का अंत भी बुरा है तो यह आपकी गलती है। जब अम्बेडकर जी पढ़ने जाते थे तो उन्हें पीने के लिए पानी जैसे और बैठने के लिए जगह जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जूझना पड़ता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो पढ़ने लगे रहे और उन्होंने 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसकी मदद से हम अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ सकते हैं। धन्यवाद। आगे के परिचय के लिए मैं सहपाठी शैलेश आर्य को बुलाना चाहूंगा। सभा में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं वरिष्ठ को मेरी तरफ से अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शैलेश आर्य है और मैं जत्था 2024 का छात्र हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक साधारण नाम नहीं है, जबकि वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे। आज लोग उनके चरित्र पर फूल माला चढ़ाते हैं, परंतु उनके चरित्र को बहुत कम लोग अपनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के करनी और करनी में अंतर नहीं था। वे गरीब और पिछड़े होते हुए भी अपने लक्ष्य से कमी नहीं बनते। अभाव का जीवन जीने वाले अपने प्रभाव का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। अब देश को चलाने के लिए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, उसे चलाने के लिए संविधान लिखित संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्माण किया गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। भारतीय संविधान समतामूलक समाज की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय संविधान समतामूलक समाज की रीढ़ की हड्डी है। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को द्वारा मान्यता प्राप्त और अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान भी अपना संविधान की प्रस्तावना है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान की अपना संविधान की प्रस्तावना है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब राज्य के नागरिकों देश की संविधान द्वारा पत्र सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अधिकार मिला। इसी को मताधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में 326 अनुच्छेद 326 मताधिकार को संबोधित करता है। मताधिकार केवल मतपत्र पर निशान लगा देना ही नहीं, मताधिकार केवल मतपत्र पर निशान लगा देना ही नहीं, बल्कि वे तो एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जिनमें उन शब्दों के नियमन में सीधी तथा सहज साझेदारी हो, जिस पर से जीवन आधारित होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न केवल संविधान निर्माता थे, बल्कि वे कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश पुंज है। धन्यवाद।
दिखा दे एक बार फोटो दिखा दे जा अबे अपने बेस्ट की बात नहीं है मेरे को भी